Very good evening to all of you, those who are present over here. My name is Satish Yadav, and today we'll go and we'll try to understand the seventh part of a graph theory. ऐसा नहीं है कि कोई भी लिंक है, मैंने इंडिपेंडेंट टॉपिक कवर किए हैं, तो यू कैन गो एंड यू कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड. वेरी गुड इवनिंग आकाश, वेरी गुड इवनिंग कुणाल. सो ऐसा नहीं है कि देयर इज अ नीड फॉर सिक्स्थ सीरीज और फिफ्थ सीरीज और समथिंग लाइक दैट. तो बेसिकली होगा क्या मालूम है कि आप लोग कोई भी टॉपिक एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन बेसिकली अंडरस्टैंड. Can you tell me that everything is fine? Just let me know that everything is fine so I can go and I can try to record it. There is a problem. Okay, so we'll go and we'll try to understand कि basically ये graph theory क्या है and each and everything that is related to what. ठीक है, we'll go and we'll try to understand कि basically graph theory क्या है. We'll go and we'll try to understand कि what is a part of this graph theory related to that. So this is the seventh part of a graph theory. तो आज हम लोग ये seventh part के type में जाएंगे and we'll try to understand the different types of graph. ठीक है, different types of graphs के बारे में बात करेंगे कि different types of graphs क्या होते हैं. And that is also very very important concept that you will be having with respect to this. ठीक है. अच्छा, those people who want to take a subscription. तो सबसे पहले कि आप लोग ये सोचोगे यार कि सब्सक्रिप्शन लेना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और why the faculty is telling. Faculty is telling for a subscription क्योंकि faculty wants you to save your 1 year. क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है, न्यू कॉन्सेप्ट कुना, न्यू कॉन्सेप्ट, इंडिपेंडेंट टॉपिक. So we'll go and we'll try to understand with respect to this. So here the thing is why we have to go and why we have to take a subscription, because faculty wants to save your 1 year. See, problem क्या होता है ना कि आप लोग रेफरेंस बुक पढ़ते हो, but the problem is what to study and what not to study. That is one of the main important topic. So you can take this particular subscription. One is called as a iconic subscription and another one is called as a plus subscription. अच्छा, iconic subscription में होगा क्या कि you consider like a faculty is just sitting near to you and then he will be teaching each and every concept. Plus में you will be having the live classes, you will be having the test series, you will be having the unlimited practice. These all are the things that is available with respect to the paid version. तो आपको करना क्या है कि you can use this code. पेमेंट के टाइम पे you can use this code. तो आपके पास different पेमेंट मेथड, 6 महीने का है, 3 महीने का है, 12 महीने का है, 24 मंथ्स का है. बट आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि गो विद 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन. फायदा दो फायदे हैं. पहला ये है कि पर मंथ कॉस्ट लिस्ट है, ठीक है. एंड सेकंड फायदा ये है कि बेसिकली इफ अ फैकल्टी और अनअकैडमी टीम इज स्टार्टिंग एनी पर्टिकुलर बैच, यू विल बी पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर बैच. ठीक है. सो दिस टू एडवांटेज थिंग्स दैट यू विल बी हैविंग विद रिस्पेक्ट टू दिस. ओके, दैट इज नथिंग बट टू एडवांटेज थिंग दैट यू विल बी हैविंग विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट. अच्छा, जाते हैं और भी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं कि बेसिकली व्हाट आर द अदर कॉन्सेप्ट. अच्छा, those people who have new and those people who wants to join this particular, they can join this particular channel in order to get short notes, in order to get the formulas, in order to get each and everything. Yesterday I have shared one formula sheet, so if you people have joined it, you can get it कि formula sheet क्या है and each and everything related to that. Okay, so we'll go and we'll try to understand the types of graph. तो types of graph के बारे में बात करते हैं कि types of graph क्या होता है. So we'll go and we'll try to understand the first type of graph that I will be taking over here. ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं. इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ ग्राफ एंड दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, दैट इज कॉल्ड एज अ कंप्लीट ग्राफ. अब अगर कोई पूछेगा कि कंप्लीट ग्राफ क्या होता है, तो आपको बोलना है कि कंप्लीट ग्राफ इज बेसिकली हैविंग अ रिप्रेजेंटेशन जिसको k ऑफ n कहते हैं, एंड वेयर n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट, वेयर n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. सो फॉर एग्जांपल, सपोज इफ दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, दिस इज गोइंग टू बी k ऑफ 1, जहां पे n is representing as what, n is representing as the total vertices, n is representing as what, n is representing as a total vertices. Very good evening Shireen Rafat Alam. ठीक है, वेरी गुड इवनिंग. ओके, सो व्हाट इज अ कंप्लीट ग्राफ. कंप्लीट ग्राफ को क्या कहते हैं, k ऑफ n वेयर n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. तो ये आपका फर्स्ट वर्टेक्स का कंप्लीट ग्राफ है एंड सेकंड वर्टेक्स इज कंप्लीट ग्राफ दैट इज रिप्रेजेंटेड एज अ k ऑफ 2. अच्छा, दो क्या रिप्रेजेंट करता है, दो रिप्रेजेंट करता है वर्टिसेस. अब मैं अगर कंप्लीट ग्राफ थर्ड के बारे में बात करूं तो हियर इट विल बी रिप्रेजेंटिंग द 3 वर्टिसेस. नाउ सपोज इफ आई वांट टू टॉक अबाउट द k4 वर्टिसेस, तो उसमें 4 क्या होगा, वर्टिसेस होंगे.
ठीक है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग एज व्हाट, दिस इज रिप्रेजेंटिंग एज K4। अच्छा, अब अगर आपको पूछेगा कि कोई कि व्हाट इज द कंप्लीट ग्राफ, देन यू हैव टू से दैट कंप्लीट ग्राफ वो ग्राफ होता है जहां पे सबका डिग्री n-1 होता है। सो इफ यू ट्राई टू सी द डिग्री ऑफ दिस वन इज 3, डिग्री ऑफ दिस वन इज 3, डिग्री ऑफ दिस वन इज 3, डिग्री ऑफ दिस वन इज 3। सो विद रिस्पेक्ट टू द फोर वर्टिसेस, विद रिस्पेक्ट टू द फोर वर्टिसेस सबकी डिग्री कितनी होती है, 3 3 3 और 3, मतलब 4 वर्टिसेस है, सबकी डिग्री 4 4 4, सबकी डिग्री 3 3 3 होती है। यहाँ पे you will be getting a 3 vertices, so 3 vertices you will be getting what, 3 vertices you will be getting degree 2 2 2। so if anybody is asking what is a complete graph, then you have to say that complete graph is having a representation such that degree of each vertex is going to be n-1। ठीक है, तो आपको ये पहला पॉइंट याद रखना है कि what is the degree of each vertex। so here you will be getting what degree of each vertex and that is going to be what, that is going to be n-1। इसके ऊपर ही एक दूसरा स्टेटमेंट हमको ये मिलता है कि अगर सबकी डिग्री n-1 होगी, लेट्स कंसीडर कि इफ a degree of each vertex is n-1, then what will happen, total vertices is n, degree of each vertex is n-1 and that is handshaking theorem that it will be equals to 2e। तो number of edges, how much you will be getting, number of edges you will be getting is n into n-1 divided by 2। ठीक है, तो अब अगर कोई पूछेगा, yes yes yes, if anybody is asking what is a complete graph, then you have to say that complete graph is having a representation k of n where degree of each vertex is going to be what, degree of each vertex is representing as n-1 and this graph is having exactly n into n-1 divided by 2 number of edges। that is a thing that you people have to understand। दो इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, या तो ये पहला वाला इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट याद रखो और यू कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट। सो हियर व्हाट इट इज ट्राइंग टू से दैट कि डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स इज n-1 और number of edges, exactly it will have number of edges is basically n into n-1 divided by 2। these two things you have to understand, then only you can understand with respect to complete graph। second type of graph that we have to go and we have to understand, जिसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ग्राफ। लेट्स गो, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि बेसिकली कॉम्प्लीमेंट ग्राफ होता क्या है। तो अब मैं आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट ग्राफ के बारे में बात करता हूं कि कॉम्प्लीमेंट ग्राफ क्या होता है। तो अब अगर कोई पूछेगा कि कॉम्प्लीमेंट ग्राफ क्या होता है, तो आपको ये बोलना है कि मेरे को ना जी दिया होगा, कॉम्प्लीमेंट ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होता है। तो कॉम्प्लीमेंट ग्राफ ड्रॉ कैसे करते हैं कि सपोज आपके पास यहाँ पे जी है, ठीक है, तो मेरे को जी कॉम्प्लीमेंट ड्रॉ करना है। सबसे पहला काम जो है कि आप वर्टाइसेस एज इट इज लिख लीजिए, ठीक है, वर्टाइसेस एज इट इज लिख लीजिए। उसके बाद में क्या होगा कि जो एजेस, दोज एजेस व्हिच आर प्रेजेंट ओवर हियर, द सेम एजेस विल बी एब्सेंट ओवर हियर, द सेम एजेस विल बी एब्सेंट ओवर हियर, दोज एजेस व्हिच आर एब्सेंट ओवर हियर will be present over here, will be present over here, those edges, okay, those edges which are absent over here will be present over here। सिर्फ edges का ही यहाँ पे पंगा है, vertices आपका सेम होगा, जो vertices आपको यहाँ पे मिलेंगे the same vertices you will also get over here। now what is a complement graph? complement graph क्या कहता है कि मेरे को G दिया होगा and I have to find out what is a complement graph of this। complement graph ड्रॉ करने के लिए आपको क्या समझना है कि those edges which are present over here will be absent over here, those edges which are absent over here will be present। बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखो वर्टाइसेस आपका चेंज नहीं हो रहा है। सपोज इफ आई विल बी टेकिंग दिस एज वर्टेक्स नंबर 1, दिस इज वर्टेक्स नंबर 2, दिस इज वर्टेक्स नंबर 3, दिस इज वर्टेक्स नंबर 4, तो सेम वर्टाइसेस मैं यहाँ लिखूंगा, वर्टाइसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज वर्टेक्स नंबर 1, दिस इज वर्टेक्स नंबर 2, दिस इज वर्टेक्स नंबर 3, दिस इज वर्टेक्स नंबर 4। अब ये देखना कि देखो 1 और 2 का यहाँ पे कनेक्शन है, इसमें कनेक्शन है, तो अब 1 और 2 यहाँ पे एब्सेंट हो जाएगा। अब मैं जी के बारे में बात कर रहा हूँ, 1 2 क्या है आपका प्रेजेंट है, तो 1 2 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे एब्सेंट हो जाएगा। अब ये देखना कि 2 3 यहाँ पे एब्सेंट है, 2 3 is absent over here, so here 2 3 is going to be what, 2 3 is going to be present over here। तो what I can do, I can try to connect from 2 to 3, I can connect 4 to 3 absent है, 4 3 will be connected, 2 to 4 will be absent, 2 to 4 will be connected। so इसको हम लोग क्या बोलेंगे, we'll go and we'll try to understand कि ये आपका G है and then this one is representing as what, this one is representing as a G complement। तो ये आपका G हो गया और ये आपका क्या हो जाएगा, G complement हो जाएगा। अब एक चीज आपको यहाँ पे बहुत ही गौर से देखनी है कि अभी मैंने आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट कंप्लीट ग्राफ बताया, उसमें होगा क्या कि ये G है और ये G complement है। when you will try to add this two, what you will get, can you visualize, you will get a complete graph of 4 vertices।
ठीक है. So if you will add this two, if you will add this two, if you will add this one and this one, what you will be getting? You will be getting a complete graph of what? You will be getting a complete graph of 4 vertices. So basically here G and G, if I will try to if I will try to combine these two, what I will be getting? I will be getting K of n. अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ये आता है कि सपोज इफ टोटल नंबर ऑफ एजेस इनटू G प्लस टोटल नंबर ऑफ एजेस इनटू G कॉम्प्लीमेंट, तो व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ एजेस इनटू K of n? दैट विल बी n इनटू n minus 1 डिवाइडेड बाय 2. क्योंकि अभी हमने यहाँ पे देखा था ये वाले ग्राफ में कि इफ इट इज गोइंग टू बी अ कंप्लीट ग्राफ, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एजेस दैट आई विल बी गेटिंग इनटू कंप्लीट ग्राफ. सो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि बेसिकली कंप्लीट ग्राफ में हमको टोटल नंबर ऑफ एजेस आते हैं n इनटू n minus 1 डिवाइडेड बाय 2. तो वैसे ही टोटल नंबर ऑफ एजेस इनटू G प्लस टोटल नंबर ऑफ एजेस इनटू G कॉम्प्लीमेंट, एंड दैट इज इक्वल्स टू व्हाट? दैट इज इक्वल्स टू n इनटू n minus 1 डिवाइडेड बाय 2. तो मेरे को n इनटू n minus 1 डिवाइडेड बाय 2, दैट विल बी व्हाट? दैट विल बी द टोटल नंबर ऑफ एजेस. तो इसके ऊपर से ना आई कैन हैव वन पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट. लेट्स कंसीडर कि सपोज इफ x is the total number of edges in G. अगर randomly बोला कि let's consider x is the total number of edges in G, then what is the total number of edges into G complement? अगर समझो 10 vertices दिया है या 15 vertices दिया है, so what I can do कि इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं, what I will be getting? I will be getting the same thing. So total number of edges into G complement, and that is equals to what? Total number of edges into G complement, total number of edges into G complement, what I will be getting? I will be getting n into n minus 1 divided by 2 minus e. So this is going to be what? This is going to be the main concept that you people have to understand. So total number of edges into this, that is going to be what? That is going to be equals to n into n minus 1 divided by 2 minus x. अब यहाँ पे एक दूसरा कॉन्सेप्ट, अगर ये चीज आपको समझ में आ गई है तो we'll go and we'll try to understand the other concept, and जिसको क्या कहते हैं हम लोग? जिसको हम लोग कहते हैं सेल्फ कॉम्प्लीमेंट ग्राफ. So we'll go and we'll try to understand कि what is basically सेल्फ कॉम्प्लीमेंट ग्राफ. अब हम लोग ना सेल्फ कॉम्प्लीमेंट ग्राफ कहते हैं जिन लोगों ने कॉम्प्लीमेंट के बारे में समझ गए हैं. Those people who have understood with respect to the complement graph, they can easily understand what is a self complement graph. Self complement graph क्या कहता है कि let's consider if this is G, if G is equivalent to G complement, तब अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग सेल्फ कॉम्प्लीमेंट ग्राफ बोलेंगे. सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? कहने का मतलब ये है कि आपका G दिया होगा और आपका G कॉम्प्लीमेंट दिया होगा. अगर आप G देखोगे और G कॉम्प्लीमेंट अगर दोनों देखोगे तो दोनों विल लुक एग्जैक्टली द सेम थिंग. मतलब G भी वही होगा और G कॉम्प्लीमेंट भी वही होगा. कहने का मतलब ये है कि अगर किसी ग्राफ का आप कॉम्प्लीमेंट लेते हो तो वो ग्राफ एग्जैक्टली वैसा ही दिखता है. लेट्स कंसीडर वन एग्जांपल. Suppose if I will be taking this particular graph, try to understand. See, if I will be taking this particular graph, ये आपका G है. जब मैं इसका G complement बनाऊंगा, what I will be getting? I will be getting some graph like this. Please try to understand what I will be getting. So here it is going to be G, and here it is going to be what? Here it is going to be G complement. आप देख सकते हो कि दोनों ग्राफ सेम है यहाँ पे. So if anybody is asking what is a self complement graph, तब आपको बोलना है कि self complement graph क्या होता है कि if we are taking the complement of any graph and complement भी exactly same आ जाए तो उसको हम लोग self complement graph कहते हैं. अच्छा, तो सर आप ये कहना चाहते हो कि ये ग्राफ और ये ग्राफ सेम है? एग्जैक्टली दोनों सेम चीजें हैं, इसलिए उसको सेल्फ कॉम्प्लीमेंट ग्राफ कहा जाता है. तो सर अभी आपने फॉर्मूला बताया था कि अगर मैं G और G कॉम्प्लीमेंट लिखूंगा तो दैट विल बी इक्वल्स टू Kn. एग्जैक्टली सर आपने ये भी बताया था कि नंबर ऑफ एजेस इनटू G plus number of edges into G complement, and that is equals to n into n minus 1, and that will be divided by 2. Yes, मैंने ये भी बताया था आप लोगों को. ठीक है, मैंने ये चीज भी बताई थी कि number of edges into G plus number of edges into G complement, that will be divided by what? That will be divided by 2. तो सर अगर इसमें E edges आएंगे तो इसमें कितने एजेस आएंगे? भाई साहब आपकी ग्राफ तो सेम है ना, तो आपको तो सेम नंबर ऑफ एजेस आने वाले. तो सर आर शेप इज डिफरेंट. नो आकाश, ग्राफ थियरी में इट डजंट मैटर कि आप ग्राफ कैसे बनाओ, उसको ऐसे रोटेट कर दोगे तो वो ग्राफ बन जाएगा. ग्राफ थियरी में इट डजंट मैटर. अगर मैं ग्राफ को इस तरीके से बनाऊं या फिर मैं ग्राफ को इस तरीके से बनाऊं, ये दोनों चीजें सेम होती हैं. ठीक है, ये दोनों चीजें आपकी सेम होती है. आपका वर्टाइसेस सेम होना चाहिए, आपका एजेस सेम होना चाहिए, तो ये दोनों चीजें सेम होती है. इट इज इमैटेरियल हाउ यू ड्रॉ द ग्राफ इनटू ग्राफ थ्योरी. दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट यू हैव टू कंसीडर. समझ गए?
नो नो नो, नॉट द कनेक्टेड वर्टेज शुड नॉट बी द सेम, वो जरूरी नहीं है। अगर आपको मतलब इफ यू आर नॉट गेटिंग दिस, आई विल ट्राई टू गिव यू अनदर explanation such that if any graph is isomorphic to its own complement, isomorphism का मतलब क्या होता है, सेम। so if any graph is isomorphic to its own complement, उसको हम लोग सेल्फ कॉम्प्लीमेंट ग्राफ कहते हैं, ठीक है, that you can understand in this way। अब ये देखना कि आपकी ये भी ग्राफ सेम है जिसमें ई नंबर ऑफ एजेस आए हैं, आपकी ये भी ग्राफ सेम है जिसमें ई नंबर ऑफ एजेस आए हैं। नाउ इफ आई विल ट्राई टू ऐड दिस टू, व्हाट आई विल बी गेटिंग, आई विल बी गेटिंग 2e and that will be equals to n into n minus 1 divided by 2. So total number of edges into self complement graph, okay, total number of edges into self complement graph, what you will be getting, यहाँ पे देखना कि total number of edges into self complement graph, what you will be getting is basically e equals to n into n minus 1 divided by 4। ये किसका फॉर्मूला है, सेल्फ कॉम्प्लीमेंट ग्राफ का फॉर्मूला है, ठीक है। तो सेल्फ कॉम्प्लीमेंट ग्राफ क्या कहता है कि n into n minus 1 divided by 4। तो सेल्फ कॉम्प्लीमेंट ग्राफ, अगर कोई बोलेगा कि सेल्फ कॉम्प्लीमेंट ग्राफ में कितने नंबर ऑफ एजेस होते हैं, तो आपको बोलना है कि n into n minus 1 divided by 4। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट, दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अ सेल्फ कॉम्प्लीमेंट ग्राफ। एक दूसरी चीज जो हमको यहाँ पे ये फॉलो करनी होती है, we'll go and we'll try to understand that particular formula and how it can be related to that। let's go and let's try to see it। देखो, total number of edges into self complement graph you will be getting is n into n minus 1 divided by 4, बराबर है। Now if I will be taking n equals to 4, जब मैं n equals to 4 vertices रखूंगा ये वाले फॉर्मूले में, तो e that I will be getting is 4 into 3 divided by 4। तो मेरे को कितने एजेस आएंगे, 3 एजेस आएंगे। And what is the visualization? The visualization is this. This is basically the visualization with respect to the self complement graph। अब मैं दूसरा एक चीज यहाँ पे रखने वाला हूँ कि सपोज इफ आई विल बी राइटिंग e इक्वल्स टू n into n minus 1 divided by 4, जब मैं n equals to 5 रखूंगा, so how many edges I will be getting? I will be getting 5 into 4 divided by 4। What I will be getting? I will be getting 5 number of edges। Now if I will be putting e equals to n into n minus 1 divided by 4, if I will try to put n equals to 6, तो इसमें क्या होगा मालूम है कि here you will be getting 6 into 5 divided by 4। Actually your edges will be coming in terms of a point। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सेल्फ कॉम्प्लीमेंट ग्राफ जो होती है that is not possible for all the vertices, it is possible for a selected number of vertices। please try to understand, self complement graph is not possible with all the vertices, it is only possible with respect to the selected number of vertices। हमने अभी देखा कि वो 4 के लिए पॉसिबल है, हमने अभी देखा कि वो 5 के लिए पॉसिबल है, लेकिन वो 6 के लिए कभी पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। अगर आप 7 के लिए भी ट्राई करोगे, सो इवन इफ यू ट्राई टू पुट n equals to 7, suppose even if you try to put n equals to 7, n equals to 7, and if you use this formula such that 7 into 4 and then divided by 2, sorry 7 into what I'm writing, 7 into 6, okay, 7 into 6 divided by 4, तो still you will be getting what, you will be getting something in terms of a point। तो बेसिकली मैं बोल सकता हूँ कि सेल्फ कॉम्प्लीमेंट ग्राफ यू कैन ऑल्सो राइट, इफ यू आर मेकिंग अ पॉइंट, यू कैन ऑल्सो राइट अ पॉइंट ओवर हियर कि सेल्फ कॉम्प्लीमेंट ग्राफ इज नॉट पॉसिबल विद रिस्पेक्ट टू द ऑल द वर्टाइसेस, इट इज ओनली पॉसिबल विद रिस्पेक्ट टू द सेलेक्टेड नंबर ऑफ वर्टाइसेस। जैसे कि 4 के लिए पॉसिबल होगा, 5 के लिए पॉसिबल होगा, 6 के लिए पॉसिबल नहीं होगा, 7 के लिए पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन 8 के लिए पॉसिबल होगा, 9 के लिए पॉसिबल होगा। So if you want to understand this thing in a clear way, तो मैं इसको इस तरीके से भी बोल सकता हूं कि जब आपका ना 4 n को डिवाइड करेगा, जब आपका 4 जो है वो n को डिवाइड करेगा, और when 4 is dividing n minus 1, तो जाके self complement graph is going to be possible। So when 4 is dividing n, when 4 is dividing n, or when the 4 is dividing n minus 1, then only self complement graph is possible, otherwise the self complement graph is not going to be possible। So number of edges that you will be getting is n into n minus 1 divided by 4। So when 4 is dividing n or 4 is dividing n minus 1, then only the self complement graph is possible, otherwise the self complement graph is not possible। अगर आप मेरे को इसको एक्सटेंड करने के लिए बोलोगे तो मैं इसको और एक एक्सटेंड करके एक नया फॉर्मूला बना सकता हूं, लेकिन उसके लिए थोड़ा पेशेंस चाहिए। सर वो कैसे, जो गेट में पूछता है मैं वो बता देता हूं। देखो एक कॉन्सेप्ट है, इसको कहा जाता है कि A is congruent to B mod n। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि A और B का रिमाइंडर सेम होता है विद रिस्पेक्ट टू n।
तो आप कभी भी आप अगर मॉड फंक्शन देखोगे ना तो आप इसको इस तरीके से समझ लो कि a comma b are having same remainder with respect to n. ठीक है, that you have to understand. So a comma b are having same remainder with respect to what? Same remainder, and then that is with respect to what? With respect to n. Example के लिए जैसे मैं लिख लूं कि 0 is congruent to 4 mod 4, जैसे मैं ये लिखूंगा ना, ये देखना कि इसका भी रिमाइंडर 0 आएगा, इसका भी रिमाइंडर 0 आएगा, तो इनको साथ में मैं लिख सकता हूं. अब जैसे कि 1 is congruent to 5 and then you will be getting what? You will be getting mod 4. तो इसका मतलब है इसका भी रिमाइंडर सेम होगा और इसका भी रिमाइंडर सेम होगा. And 2 is basically congruent to 6 and then mod 4. तो with respect to 4 लेना है मेरे को, with respect to 4 लेना है. तो 0 and 4 का रिमाइंडर सेम होगा, 1 and 5 का रिमाइंडर सेम होगा, 2 and 6 का रिमाइंडर सेम होगा. So we can say that with respect to this particular concept. अब या तो ये चीज आएगी या तो एक दूसरा चीज मैं आप लोगों को बताता हूं. अगर ये चीज नहीं भी समझ में आए तो मैथमेटिकली हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ये स्टेटमेंट 1 है, ये स्टेटमेंट 2 है. एक और स्टेटमेंट होता है 3. जब कभी भी आपका n a माइनस b को डिवाइड कर देता है और आपको इंटीजर आ जाता है तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो. मतलब स्टेटमेंट 1 इज इक्विवेलेंट टू स्टेटमेंट 2 एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू 3. अब अगर आप फ्यूचर में कभी भी देखोगे ना कि a इज कॉन्ग्रुएंट टू b mod n, तो आपको ना ये दो चीजें याद रखनी है कि a और b का रिमाइंडर जो होता है वो सेम होता है. दूसरा चीज ये याद रखना है कि अगर a माइनस b, n अगर a माइनस b को डिवाइड कर देगा तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो. सर आप ये बताना क्या चाहते हैं? मैं ये बताना चाहता हूं कि देखो 4 is dividing n minus 0, तो कहने का मतलब है कि n is congruent to 0 mod 4. ठीक है, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं. तो सर आप ये कहना चाहते हो कि अगर किसी n वाले एलिमेंट का रिमाइंडर 0 आएगा तो वो सेल्फ कॉम्प्लीमेंट ग्राफ पॉसिबल होगा? एग्जैक्टली मैं यही कहना चाहता हूं. Now here n is congruent to 1 and then that is going to be what? That is going to be mod 4. See what is the meaning of that? So meaning of that, इसका मतलब क्या है मालूम है कि इसका रिमाइंडर अगर इस n के एलिमेंट का रिमाइंडर अगर आपको 1 आ जाता है then you can write it. So self complement graph, here self complement graph is also going to be possible. When it is going to be possible, self complement graph when n is congruent to 0 or 1 mod 4. ठीक है सर, ये लास्ट वाली लाइन लिखने की क्या जरूरत थी? मेरे को ऑलरेडी ये चीज समझ में आ गया था कि अगर 4 n को डिवाइड करेगा तो सेल्फ कॉम्प्लीमेंट ग्राफ आएगा, या तो 4 n minus 1 को डिवाइड करेगा तो सेल्फ कॉम्प्लीमेंट ग्राफ आएगा. आपको ये सब लिखने की क्या जरूरत थी यहाँ पे? एक्चुअली बच्चा लोग, इसमें होता क्या है मालूम है कि गेट में ना ये स्टेटमेंट देता है, 3 से 4 बार गेट में ये स्टेटमेंट आया है कि सेल्फ कॉम्प्लीमेंट ग्राफ इज गोइंग टू बी पॉसिबल व्हेन n इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 और 1 mod 4. अगर नहीं समझ में आ गए तो यू कैन आल्सो आस्क मी कि सर ये नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया. I can feel free to ask me. I can easily tell you all the things that is related to that. ठीक है, so n is congruent to 0 1 mod 4. So this is related to what? This is related to the self complement graph. अब हम लोग जाते हैं, अगर if you do not have any particular doubt, so we'll go and we'll try to understand the other thing, and that is related to what? ठीक है, and that is related to what? Please repeat. हाँ बिल्कुल रिपीट कर दूंगा आकाश जी, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को यहाँ पे. देखो ये क्या कहता है. Okay, I will try to go and I will try to explain one more time. Those people who have not understood, no problem. अरे यार पढ़ने के लिए आए हो, 10 मिनट और लगेंगे, आ जाएगा. सुनना, जब कभी भी आप ये लिखते हो इसका मतलब ये होता है. ठीक है, जब कभी भी आप ये लिखते हो कि a is congruent to b mod n, इसका मतलब क्या होता है मालूम है? पहला तो मतलब ये होता है कि a comma b are having same remainder. ठीक है, आप कोई भी दो एलिमेंट ले लो, मॉड n को फिक्स करो, कोई भी दो एलिमेंट ले लो, उनका रिमाइंडर सेम आया तो मैथमेटिक्स बोलता है आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो. a and b are having a same remainder. ठीक है, सेम रिमाइंडर विद रिस्पेक्ट टू n. आप n फिक्स कर लो, जैसे मैंने n यहाँ पे फिक्स कर लिया कि n इक्वल्स टू 4 ले लो, तो आप दुनिया का कोई भी इंटीजर उठा लो. ठीक है, मैंने लिख लिया कि 1. ठीक है, 1 and that is congruent to what? That is congruent, 1 is congruent to 5 and then it will be related to what? It will be related to mod 4. बराबर है? या फिर अगर मैं 0 ले लूं तो 0 is congruent to 4 mod 4. What is the meaning of that? इसका मतलब क्या होता है मालूम है
कि बेसिकली 1 जो होगा, ठीक है, ये 1 और 5 का रिमाइंडर सेम है विद रिस्पेक्ट टू 4, 0 एंड 4 का रिमाइंडर सेम है विद रिस्पेक्ट टू 4। इसको मैथमेटिकली भी बोला जाता है कि स्टेटमेंट नंबर 2 कि अगर n आपका a माइनस बी को डिवाइड कर दे, ठीक है, तो भी ये आप इसको ये वाले स्टेटमेंट, ये थर्ड वाला स्टेटमेंट लिख सकते हो। सो आइदर 1 इज सेटिस्फाइंग और 2 इज सेटिस्फाइंग और 3 इज सेटिस्फाइंग, कुछ भी सेटिस्फाई कर ले आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। आप देखोगे ना ये वाले को अगर मैं लिखूंगी, आई कैन राइट एज दिस, एज व्हाट, I can write this as 1 minus 5 and then divided by 4. I can write this as 0 minus 4 divided by 4. So you can easily write with respect to this particular concept. You can easily write with respect to this particular concept. समझ में आ गया? So ये आपका क्या हो जाएगा? This one will become what? This one you can write it down. अब self complement graph क्या कहता है? Self complement graph कहता है कि अगर 4 ने n को डिवाइड कर दिया, या तो 4 ने अगर n minus 1 को डिवाइड किया, तो self complement graph आपका पॉसिबल है। इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं कि 4 इज डिवाइडिंग, अगर ये डिवाइड कर रहा है तो एक्चुअली इट इज सेटिस्फाइंग द प्रॉपर्टी नंबर 2। सो आई कैन राइट इज n इज कांग्रेट्स टू 0 एंड देन मॉड 4। मैथमेटिक्स कहता है आप लिख दो। इसको दूसरे तरीके से समझने का मतलब है कि अगर किसी n का रिमाइंडर 0 आएगा विद रिस्पेक्ट टू 4, तो दैट विल बिकम द सेल्फ कॉम्प्लीमेंट ग्राफ। या फिर मैं n इज कांग्रेट्स टू 1 लिख दूं एंड दैट इज रिलेटेड टू व्हाट, दैट इज रिलेटेड टू मॉड 4, तो भी वो सेल्फ कॉम्प्लीमेंट ग्राफ आएगा। तो गेट में ना ऐसे बहुत बार पूछा है कि n इज कांग्रेट्स टू 0 और 1 mod 4, okay, if n is congruent to 0 or 1 mod 4, then what you will be getting? You will be getting this particular concept such that n is congruent to 0 or 1 mod 4. So here you will be getting what? Here you will be getting this particular concept कि n is congruent to 0 or 1 mod 4, that you will be getting over here. समझ में आ गया? तो it will become what? It will become the self complement graph. गेट में 2-3 बार पूछा इसलिए मैंने ये बताया। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता, आप लोग इतना ही सोच लो, भाई साहब अगर 4 ना n को डिवाइड कर दे, सेल्फ कॉम्प्लीमेंट ग्राफ। 4 ना अगर n minus 1 को डिवाइड कर दे, सेल्फ कॉम्प्लीमेंट ग्राफ। एग्जांपल के लिए ये देख लो, 4 is dividing, see 4 is dividing n, self complement graph, 4 is dividing n minus 1, self complement graph। यहाँ पे ना तो ये इसको डिवाइड कर रहा है, ना तो ये इसको डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे ना तो ये इसको डिवाइड कर रहा है, ना तो ये इसको डिवाइड कर रहा है। Hence we can say that it is going to be what? It is not going to be a self complement graph with respect to the 6 number of vertices, with respect to the 7 number of vertices. That is the explanation with respect to what? That is the explanation with respect to the self complement graph. ठीक है, अब हम लोग जाते हैं and we'll try to understand the another graph, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं लाइन ग्राफ। Line graph is having a representation. Let's consider, let's try to understand what is a line graph. Line graph is basically, it is represented something in terms of this. तो आपको एक नॉर्मल ग्राफ दिया होगा, आपको क्या बनाना है, इसका लाइन ग्राफ बनाना है। ठीक है, लेट्स कंसीडर वन एग्जांपल। सपोज, okay, suppose if I will be having this graph, okay, let's consider कि suppose if I will be having this graph, मुझे ना इसका लाइन ग्राफ बनाना है, तो इसके कुछ प्रोसीजर्स हैं। ठीक है, we'll go and try to understand the procedure of that. लेट्स कंसीडर कि सबसे पहले तो वर्टेक्स का नाम दे दो, दिस इज वर्टेक्स 1, दिस इज वर्टेक्स 2, दिस इज वर्टेक्स 3, दिस इज वर्टेक्स 4, दिस इज वर्टेक्स 5। ठीक है, नाम देने के बाद में असाइन या फिर आप क्या करो मालूम है, ट्राई टू गिव द नेम ऑफ एजेस। ठीक है, एजेस का नाम दे दो। ठीक है, गिव अ नेम टू एजेस। ठीक है, वो एजेस का नाम कैसे दोगे आप, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये देखना कि ये वाला एज जो होगा वो 2 और 4 के बीच में है, तो 2 और 4 लिख लो। इनके बीच में 4 और 5 है, तो 4 और 5 लिख लो। इनके बीच में 2 और 5 है, तो 2 और 5 लिख लो। इनके बीच में 3 और 2 है, तो 3 और 2 लिख लो। अभिषेक, नमस्ते सर, आज से शुरू करूं, गेट तो हो जाएगा क्या? कल मैंने फॉर्म भरा। बिल्कुल हो जाएगा यार, बिल्कुल हो जाएगा अभिषेक, क्यों नहीं होगा आपका, लेकिन उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग, मतलब 8 घंटे से कम पढ़ोगे तो देयर विल बी अ प्रॉब्लम, बट इफ यू विल स्टडी एवरी डे फॉर 8 आवर्स, ठीक है, ट्राई टू स्टडी एवरी डे 8 आवर्स, ठीक है, एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं एंड यू हैव टू डू ए रिवीजन, ठीक है, और 30 क्वेश्चंस ऑन ईच एंड एवरी डे सॉल्व कर लो, गेट निकल जाएगा लेस देन 200 रैंक। सी हियर द एज इज 1, 2 इसके बीच में, तो मेरे को नेम देना है। So here I will be going and here I will be trying to give this statement 1 or 3, 1 or 2, 3 or 2, 2 or 4, 2 or 5, 4 or 5, ठीक है। And those people who are really interested ना, हम लोगों ने in Unacademy we are going with the paid subscription also, ठीक है। लिख सकते हैं शैडो गेमिंग लिख सकते हैं, अनऑर्डर्ड पेयर होता है वो, आप लिख सकते हो 3,2 लिख दो, क्योंकि डायरेक्टेड ग्राफ नहीं है ना, तो 2,3 लिखो या 3,2 लिखो, इट डज नॉट मैटर एक्चुअली।
देखो we have already started with the paid program. So every day morning 8:45 to 10:45 I will be teaching the discrete mathematics. 11 to 1 आपका कंपाइलर डिजाइन चल रहा है और 3 to 5 जो है वो आपका डेटा स्ट्रक्चर्स चल रहा है. So if you are really trying to do a paid का सब्सक्रिप्शन तो 6 आवर बेसिकली वी आर टीचिंग और फिर 11 से 12 जो है, ठीक है, 11 से 12 जो है that I am taking the practice of a DM discrete maths का मैं प्रैक्टिस करवा लेता हूँ. So if you are really interested to take the subscription तो अगर आप ये कोड यूज करोगे ना BABA20 तो you will get a 10% discount with respect to that. ठीक है. So if you are really dedicated, what you are waiting for, मतलब वेट क्यों कर रहे हो? Why you people are waiting कि मेरे को कल से पढ़ना है, मेरे को परसों से पढ़ना है? अरे less than 130 days is there, less than 140 days is there, and still if you people are thinking कि मैं पढ़ूं या नहीं पढ़ूं तो आप लेट हो. Literally आपको बुरा लगे लेकिन you people are late. Only 130 days is there, 140 days is there. So how you people will be studying about it? Take a subscription, come to our team and we will teach you how to prepare for this GATE examination. Every day 6 to 7 hours we will be teaching how to do a revision, how to solve the question, कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से नहीं पढ़ना है. Actually that is one of the main problem. Okay, anyhow we'll go and we'll try to understand this thing. अब क्या करना है, नेम तो मैंने एजेस को असाइन कर दिए. उसके बाद में क्या करना है कि ये जो एजेस है ना I will try to take as a vertex. So line graph basically कहना क्या चाहता है, try to understand about a line graph. Line graph क्या कहता है कि line graph कहता है कि मेरे पास जो भी edges आएंगे that edge will become a vertex here. So that is the second step. So your edge will become what? Your edge will become what? Your edge will become the vertex here. So your edge will become a vertex here. See this is a 1 3, 1 3 will become a vertex here. This edge 1 2 will become a vertex here. Okay, so I think ये यहाँ नीचे नहीं दिखेगा तो मैं ऊपर लिख देता हूँ इसको. ठीक है. So 1 3 this edge will become a vertex here. 1 2 this edge will become a vertex here. 3 2 this edge will become a vertex here. 2 4 this edge will become a vertex here. 2 5 this edge will become a vertex here. 4 5 this edge will become a vertex here. अब आपको दो वर्टाइसेस एक दूसरे के साथ में तब कनेक्टेड करने होंगे जब आप कोई कॉमन देख लो. जैसे कि 1 3 और 1 2 में कॉमन है तो आप इसको कनेक्ट कर लो. क्या कॉमन था? 1 कॉमन था. 1 2 और 2 4 है तो आप 2 कॉमन है, कनेक्ट कर लो. 2 4 और 4 5 है, 4 कॉमन है, कनेक्ट कर लो. 4 5 2 5 5 कॉमन है, कनेक्ट कर लो. 3 2 2 5 2 कॉमन है, कनेक्ट कर लो. 2 4 2 5 2 कॉमन है, कनेक्ट कर लो. 1 2 3 2 ये कनेक्ट कर लो. 1 3 3 3 कनेक्ट कर लो. एंड इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग लाइन ग्राफ कहते हैं. दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? दैट इज कॉल्ड एज अ लाइन ग्राफ. दिस वन इज कॉल्ड एज अ लाइन ग्राफ. ठीक है. लाइन का मतलब क्या होता है? लाइन का मतलब होता है एज ग्राफ बोला जाता है इसको. ठीक है. इन दिस वे वी कैन गो एंड वी कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड. मतलब सबसे पहले सुनो, सबसे पहले ये ग्राफ है. इस ग्राफ में जो वर्टाइसेस का नाम दे दिया बेस्ड ऑन ऑर्डर्ड पेयर. आप क्या कर, अनऑर्डर्ड पेयर एजेस के नाम दे दो. ये एज आपका यहाँ पे वर्टेक्स बन जाएगा. अब आपको दो वर्टाइसेस के बीच में कनेक्शन तब करवाना है व्हेन यू विल फाइंड समथिंग एज अ कॉमन. फॉर एग्जांपल 1 2 इज देयर, 2 3 इज देयर, 2 कॉमन आ गया, कनेक्ट कर दो. सो इन दिस वे यू कैन गो एंड यू कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कांसेप्ट दैट इज रिलेटेड टू व्हाट? दैट इज रिलेटेड टू द लाइन ग्राफ. तो ये बेसिक कांसेप्ट है. ठीक है. ये आपका क्या कॉन्सेप्ट है? ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है. किसका? लाइन ग्राफ का कॉन्सेप्ट है. ओके, विल गो एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द अदर ग्राफ जिसको हम लोग साइकिल ग्राफ कहते हैं. साइकिल ग्राफ हैविंग अ रिप्रेजेंटेशन. सो लेट्स गो, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि साइकिल ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है. साइकिल ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन C ऑफ n होता है. वो कहां से शुरू होता है? n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 से शुरू होता है. तो पहली साइकिल ग्राफ आपकी ये हो जाती है. दूसरी साइकिल ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करता है. तो ये C3 हो गया, ये C4 हो गया. तो n क्या रिप्रेजेंट करता है? n इज रिप्रेजेंटिंग द टोटल वर्टाइसेस. तो इसमें कितने वर्टाइसेस हैं? बिल्कुल आता है कुणाल, बिल्कुल आता है क्वेश्चंस. ठीक है. अभी तो मैं सिर्फ आपको आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर रहा हूं. क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं. ठीक है. सब गेट का ही कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं कुणाल, डोंट वरी. तो ये देखना, ये आपका क्या हो गया? ये C3 हो गया. ये आपका क्या हो गया? ये C4 हो गया. 3 का मतलब क्या हो गया? 3 वर्टाइसेस. 4 का मतलब क्या हो गया? 4 वर्टाइसेस. 5 का मतलब क्या होगा? You will be getting a 5 vertices here. So see, this one will become what? This one will become a 5 vertices here.
This one is representing as what? This one is representing as a C5. तो सर मेरे को एक डाउट ये है कि ग्राफ कंटेनिंग साइकिल एंड साइकिल ग्राफ में फर्क क्या है? तो मैं वो भी फर्क बता देता हूं कि ग्राफ कंटेनिंग साइकिल का मतलब क्या होता है। ग्राफ कंटेनिंग साइकिल और साइकिल ग्राफ में फर्क क्या है? I will try to give you this particular statement. Cycle graph, this is called as a cycle graph, while this one is called as what? This one is called as a graph containing a cycle. देखो साइकिल ग्राफ में सबकी डिग्री दो होती है, इसकी भी डिग्री 2 होगी, इसकी भी डिग्री 2 होगी, इसकी भी डिग्री 2 होगी, इसकी भी डिग्री 2, डिग्री 2। अगर डिग्री 2 छोड़ के कुछ भी मिलेगा तो that will become what? That will become the graph containing cycle. Here the degree will become what? Here the degree will become 2, degree will become 2, degree will become 2, degree will become 2, degree will become 2. ये सारे के सारे जो हैं that are degrees 2. अच्छा, let me tell you one more thing. Those people who have not followed me on Unacademy, please try to follow me on Unacademy. My name is Satish Yadav. ये मेरा नाम है and followed me on Unacademy. वहाँ पे DPP करके एक सेक्शन है, इसमें बहुत सारे आप लोगों को प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस मिल जाएंगे ग्राफ थ्योरी के ऊपर। जो पढ़ाया हूँ इनके ऊपर भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको क्या? ग्राफ थ्योरी के ऊपर। So you can go and you can try to understand with respect to that. ठीक है? ओके, so ये आपका क्या हो गया? ये हो गया साइकिल ग्राफ। अच्छा, अगर कोई साइकिल ग्राफ होता है ना, तो साइकिल ग्राफ, सपोज इफ यू विल बी हैविंग अ साइकिल ग्राफ, सो द फर्स्ट पॉइंट दैट यू पीपल कैन अंडरस्टैंड कि डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स विल बी व्हाट? डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स विल बी 2. डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स will be what? Will be 2. Degree of each vertex will be 2. Second statement कि number of vertices that is equals to number of edges होते हैं। मतलब अगर 3 vertices हैं 3 ही edges आएंगे, 4 vertices हैं 4 edges आएंगे, 5 vertices हैं 5 edges आएंगे, 6 vertices हैं 6 edges आएंगे। So your number of vertices is equals to number of edges। ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है with respect to what? With respect to the cycle graph। तो साइकिल ग्राफ क्या कहना चाहता है? साइकिल ग्राफ कहना चाहता है कि अगर साइकिल ग्राफ होता क्या है? साइकिल ग्राफ सबकी डिग्री 2 होती है, नंबर ऑफ वर्टिसेस इज इक्वल्स टू व्हाट? नंबर ऑफ एजेस। दैट विल बिकम व्हाट? दैट विल बिकम द साइकिल ग्राफ। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। नहीं, शैडो गेमिंग हमेशा साइकिल ग्राफ का जो वर्टिसेस होगा, डिग्री होगा, वो हमेशा 2 होगा। अगर 2 से ज्यादा होता है, अब देखो यहाँ पे ये 3 है ना, तो दिस वन विल बी ग्राफ कंटेनिंग साइकिल हो जाएगा। साइकिल ग्राफ अलग होता है, ग्राफ कंटेनिंग साइकिल अलग हो जाता है। ठीक है, सो डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स विल ऑलवेज बी 2। ये मैंडेटरी है, साइकिल ग्राफ में सबकी डिग्री आपकी 2 ही आएगी। आकाश जी, व्हील ग्राफ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, व्हील ग्राफ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। आकाश जी वेट कर लीजिए, बता देता हूं। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका साइकिल ग्राफ हो गया। तो साइकिल ग्राफ समझ में आ गया। अब हम लोग जाएंगे एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट? विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट अ व्हील ग्राफ, कि व्हील ग्राफ बनता कैसे। व्हील ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन होता है दैट इज रिप्रेजेंटिंग एज ए WN। ठीक है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग एज व्हाट? दैट इज रिप्रेजेंटिंग एज ए WN। व्हील ग्राफ आपका शुरू कहां से होता है? n is greater than or equal to 4। व्हील ग्राफ बनाते कैसे? बहुत ही प्यारा इसका कंस्ट्रक्शन है। व्हील ग्राफ को बनाने के लिए सबसे पहले साइकिल ग्राफ लिया जाता है। तो सबसे पहले साइकिल ग्राफ क्या था? C3 था मेरा भाई साहब, C3 था। C3 आ गया यहाँ पे। अब मैं क्या करूंगा? मैं ना एक नया वर्टेक्स यहाँ ऐड करता हूं बीच में, और इसके कॉर्नर को इसके साथ में कनेक्ट कर दूंगा। तो ये मेरा व्हील ग्राफ हो गया। कितने वर्टाइसेस हैं? काउंट कर लो। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, एंड दैट इज रिप्रेजेंटिंग द व्हील ग्राफ ऑफ 4 वर्टाइसेस। अब मेरे को अगर व्हील ग्राफ ऑफ 5 वर्टाइसेस बनाना होगा, तो सबसे पहले मैं C4 ले लूंगा। तो व्हील ग्राफ आपका साइकिल ग्राफ के बाद में बनता है। होते ना साइकिल के पहिए होते, तो बीच में एक नहीं होता साइकिल का पहिया ऐसा गोला सा है, बीच में एक वर्टेक्स ऐड करते हो, बाकी सबके साथ में कनेक्ट कर देते हो, वही व्हील ग्राफ है आपका। अब यहाँ पे क्या होगा? आई विल ट्राई टू ऐड वन मोर वर्टेक्स हियर। नाउ व्हाट इट विल बी देयर? आई विल ट्राई टू कनेक्ट विद दिस, आई विल ट्राई टू कनेक्ट विद दिस, आई विल ट्राई टू कनेक्ट विद दिस, आई विल ट्राई टू कनेक्ट विद दिस। तो ये आपका क्या हो जाएगा? दिस वन इज रिप्रेजेंटिंग एज व्हाट? दिस वन इज रिप्रेजेंटिंग एज ए W5। बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है दैट यू पीपल आर गेटिंग। अब मैं आप लोगों को इसमें एक और कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करूंगा, बड़े ही ध्यान से सुनना। जब मैं W5 बना रहा था, तो सबसे पहले मैंने C4 ले लिया। तो जैसे ही मैंने C4 लिया, यहां पे देखना, ये हटा दे रहा हूं, ठीक है, ये देखना पूरा ही हटा देता हूं, ठीक है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले मैंने क्या लिया? C4 लिया। C4 ने मेरे को कितना एजेस दिया? ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ मेनी एजेस द C4?
एग्जैक्टली शैडो गेमिंग। सो सबसे पहले मैंने C4 लिया, अब मेरा ना यहाँ पे एक विजुअलाइजेशन देखना, विजुअलाइज कर पाओगे मजा आ जाएगा। W5 लिया तो C4 के लिए मेरे को 4 एजेस आ गए, बराबर। अब मैं एक एक्स्ट्रा, सर 4 एजेस क्यों सर? अरे बेटा साइकिल ग्राफ क्या कहता है कि साइकिल ग्राफ में आपका नंबर ऑफ वर्टाइसेस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एजेस होते हैं। तो हियर आई विल बी गेटिंग व्हाट? हियर आई विल बी गेटिंग C4 में 4 एजेस आ जाएंगे। लेकिन अब मैंने एक नया वर्टेक्स ऐड किया, अब ये एक एज, सेकंड एज, थर्ड एज, फोर्थ एज, तो कहने का मतलब है कि सर वापस से 4 एजेस आ जाएंगे, मतलब 5 के लिए 4 एजेस आएंगे। तो सर आई कैन जनरलाइज ना कि अगर n लूंगा तो साइकिल ग्राफ n-1 एजेस देगा, उसके बाद में n-1 एक्स्ट्रा एक बीच में रख के ऐसे n-1, तो टोटल नंबर ऑफ एजेस इनटू व्हील ग्राफ विल बी 2 ऑफ n-1. This is what this is going to be. This is you will be getting with respect to what? You will be getting with respect to the total number of edges with respect to what? With respect to what? With respect to the wheel graph. That you can easily understand. नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? एक बार बता दो मेरे को, नहीं समझ में आया? I can easily tell you about this thing. फिर से बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा W5 बनाना है, C4 ले लो, स्क्वायर आ गया, 4 एजेस हैं, बीच में एक नया वर्टेक्स ऐड करो, 1 2 3 4, 4 वो 5 के हिसाब से 4 और 4 आ रहे हैं, n के हिसाब से n-1 you will be getting 2 times of n-1. That's how you will be getting with respect to what? With respect to wheel graph. That you can understand with respect to what? With respect to the wheel graph. अब मैं एक नई चीज बताने जा रहा हूं, एक, ठीक है, यहाँ पे आई थिंक someone has asked कि सबकी डिग्री 2 होगी या नहीं होगी, so I will try to explain you that statement with respect to that. मैं W5 बना रहा था ना दोस्त, ये देखना W5 बनाया, सबसे पहले C4 ले लिया, ठीक है, W5 बना। अब और एक्सप्लेनेशन सुनना, विजुअलाइज करोगे मजा आ जाएगा, ठीक है। यहां देखना, W5 बनाने के लिए सबसे पहले C4 ले लिया, बराबर है कि नहीं? बराबर है। तो 4 वर्टाइसेस थे जिनकी सबकी डिग्री 2 2 2 हुई, बीच में एक नया वर्टेक्स ऐड किया, उसके बाद में इसको कनेक्ट कर दिया, इसकी डिग्री 3 हो गई, इसको कनेक्ट कर दिया, इसकी डिग्री 3 हो गई, कंफर्म 3 डिग्री देगा, कंफर्म 3 डिग्री देगा। क्यों? क्योंकि साइकिल डिग्री पहले से 2 2 2 था। एक इसको कनेक्ट कर दिया, इसकी डिग्री 3 हो गई, इसको कनेक्ट कर दिया, इसकी डिग्री 3 हो गई। कहने का मतलब सर कॉर्नर के डिग्रीज यू विल बी गेटिंग व्हाट? कॉर्नर की डिग्रीज यू विल बी गेटिंग व्हाट? 3 3। ये एजेस है बेटा, एजेस है, ये एजेस है, ठीक है। तो कॉर्नर की डिग्री 3 3 3 होगी, यस, और इसकी डिग्री कितनी होगी? इसकी डिग्री होगी n-1, तो W5 के लिए इसकी डिग्री 4 हो गई। तो सर आप ये कहना चाहते हो कि बेसिकली अगर मैं व्हील ग्राफ लूंगा तो किसी एक वर्टेक्स की डिग्री आपको n-1 मिलेगा, यस मिलेगा, और बाकी के सबकी डिग्री कितनी मिलेगी? 3 3 3 3 3, क्योंकि ये तो साइकिल ग्राफ से आया ना मेरा बेटा लोग, ये देखो। सो सबकी डिग्री क्या आ जाएगी? सबकी डिग्री you will be getting what? You will be getting 3 3 3 3 3. That is the explanation with respect to what? With respect to the wheel graph. इसमें आगे चल के आप लोगों को क्या प्रॉब्लम होगी वो भी बता देता हूं। अगर मैंने WN लिया तो if anything is WN, ठीक है, then the total number of edges, then the total edges that what I will be getting is basically E is equals to 2 of n-1. अभी मैंने प्रूफ किया था। सेकेंड स्टेटमेंट में आपको हमेशा प्रॉब्लम होती है कि if total number of edges that I will be getting is 2 of n-1, तो क्या ये गारंटी लेगा ये आपका व्हील ग्राफ होगा? ग्राफ थ्योरी में अगर आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है, कम से कम 3 ग्राफ ड्रॉ करो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ग्राफ थ्योरी का कोई भी मैथमेटिक्स या फिर कोई भी चीज में ट्राई टू टेक दिस 3 पर्टिकुलर एग्जांपल, यू विल बी गेटिंग ईच एंड एवरीथिंग लाइक दैट। एग्जांपल ले लेते हैं। अब जैसे इफ आई विल बी टेकिंग n इक्वल्स टू 5 एंड हियर आई विल बी गेटिंग e एंड देन 2, उसके बाद में 4, उसके बाद में 8, तो सर 5 वर्टाइसेस ले लिया मैं, अब 8 एजेस बनाने ना बेटा, कर लो 8 एजेस, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि 8 एजेस आ रहे नहीं आ रहे, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, मतलब व्हील ग्राफ में बस एक वर्टेक्स की डिग्री, यस एग्जैक्टली शैडो गेमिंग। 8 एजेस करना, 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 7, दिस इज 8, लो इसकी डिग्री 2 आ गई। व्हील ग्राफ कभी अलाउ ही नहीं करेंगे डिग्री 2, तो कैन आई से दैट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और व्हाट? दिस स्टेटमेंट विल बिकम फॉल्स, ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा, सेकंड वाला स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। अगर किसी ग्राफ में एग्जैक्टली इतने एजेस आते हैं तब जाके वो व्हील ग्राफ बनेगा, लेकिन अगर वो व्हील ग्राफ है तब जाके, सॉरी दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। इफ एनी ग्राफ इज हैविंग दिस नंबर ऑफ एजेस, कैन आई से दैट इट विल बी व्हील ग्राफ? मे और मे नॉट।
जो चीज मे और मे नॉट होती है, मैथमेटिकल लॉजिक उसको फॉल्स बनाता है, वो कभी भी फॉल्स होता है। सेकेंड वाला, पहला वाला स्टेटमेंट क्या है कि अगर कोई व्हील ग्राफ है तो क्या उसमें इतने एजेस आएंगे? अभी मैंने प्रूव किया था कि इट विल बी हैविंग व्हाट, इट विल बी हैविंग दिस नंबर ऑफ एजेस। दिस इज द प्रॉब्लम यू विल फेस आफ्टर सो मेनी डेज। तो मैंने अभी इसको क्लियर कर लिया कि यू विल बी गेटिंग व्हाट, यू विल बी गेटिंग दिस नंबर ऑफ एजेस। इन दिस वे यू कैन गो एंड यू कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इस तरीके से इसको सॉल्व करना। आई होप एवरीबॉडी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज दिस नंबर ऑफ दिस कांसेप्ट एंड हाउ इट इज रिलेटेड टू ईच एंड एवरी कांसेप्ट दैट इज रिलेटेड ओवर हियर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, और आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। सो दोस पीपल हु हैव वांट्स टू टेक अ सब्सक्रिप्शन, सारी चीजें आप लोगों को स्ट्रीमलाइन में पढ़नी है तो यू कैन टेक व्हाट, यू कैन टेक अ सब्सक्रिप्शन। उसके लिए आप कोड यूज कर लो, बाबा20 कोड यूज कर लो। ठीक है, दूसरा, अगर if you don't want to take a subscription or something like that, then you can have this particular DPP section। ठीक है, जो प्रैक्टिस करने के लिए होता है। ठीक है, ये प्रैक्टिस करने के लिए ये अनअकैडमी पे है। तो सबसे पहले जो लोगों ने मुझे अनअकैडमी पे नहीं फॉलो किया है बहुत सारे फ्री लेक्चर्स के लिए, तो आप सबसे पहले अनअकैडमी पे फॉलो कर लो, बहुत सारे फ्री लेक्चर्स हैं इसी तरीके से। ठीक है, माय नेम इज सतीश यादव, सबसे पहले फॉलो कर लो। ठीक है, अगर आप लोगों को चीजें स्ट्रीमलाइन में पढ़नी है, ठीक है, स्ट्रीमलाइन में पढ़नी है, तो यू कैन टेक अ सब्सक्रिप्शन। दैट सब्सक्रिप्शन कोड इज व्हाट, द सब्सक्रिप्शन कोड इज बाबा20। ठीक है, डिस्काउंट मिल जाएगा आप लोगों को एंड यू विल बी पार्ट ऑफ आवर टीम। ओके, राइट नाउ 3 लेक्चर्स आर गोइंग पैरेलली। अभी टाइम है, क्या सोच रहे हो? अभी जब 10 दिन बाकी रहेगा तब सोचोगे, जब बोलोगे एक टाइम ऐसा आता है कि अगले साल गेट दूंगा, तब सोचोगे। ठीक है, सो यू कैन टेक हैमिल्टोनियन एंड यूलर ग्राफ। प्लीज एक्सप्लेन करना सर, प्लीज। वो नेक्स्ट लेक्चर में आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन कुणाल। ठीक है, पहले तो फॉलो कर लो। ठीक है, फर्स्ट ट्राई टू फॉलो कर लो। कल tomorrow 2nd October, tomorrow is not class, after that I will teach you something, maybe you will, और जो भी है will try to teach you something। ठीक है, ट्राई टू फॉलो दिस, सबसे पहले तो फॉलो कर लो। और क्या वेट कर रहे हो? स्ट्रीमलाइन चीजें में पढ़नी है, रोज लेक्चर पढ़ना है, पढ़ाई नहीं होती है, कोड यूज कर लो, कम टू अवर टीम, वी विल टीच यू हाउ यू कैन स्टडी, व्हाट टू स्टडी, व्हाट नॉट टू स्टडी। ठीक है, आज के लिए शुक्रिया क्लास सुनने के लिए। अच्छा लगा लाइक दबाना, दोस्तों को शेयर करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।